Welcome everyone to today's session of understanding the dynamics of Soviet Union and understanding why Soviet Union is different from what the administration in Russia was during the time of Romanovs. And for this, we will start with this. So this is a short history of Soviet Union, which will be explained to you in today's class. So let us start with पहला कि what is the basic introduction of USSR. So USSR stood for Union of Soviet Socialist Republics. It was a federal union. Federal का मतलब होता है कि you have a central administration, but at the same time, at the state level, you have a state administration also. So India is, for example, a federal state. आपका central government है, but in other states also you have their own government and lieutenant generals and mayors and who are taking control of the political administration of that. So इसमें 15 national republics थे. 80%, there are a few interesting facts about Soviet Union, that 80% of males who were born in Soviet Union in 1923 did not survive the Second World War. Most of them died. During the siege of Leningrad in Second World War, 9 Soviet scientists died of starvation because वो world के largest seed bank को protect करते रहे, and they did not eat because they believed that they are protecting the future of their country. सोवियत यूनियन जितने कंसंट्रेशन कैंप जो ऑस्विच एंड अदर्स का है, जितने भी कंसंट्रेशन कैंप्स हैं हिटलर के द्वारा, उसको जितने कंसंट्रेशन कैंप्स को सोवियत यूनियन ने लिबरेट किया था, उतना सारे अलाइज मिलके भी नहीं कर पाए. In Soviet Union, prisoners would also get tattoos of the name of Lenin and Stalin because the guards were not allowed to shoot at Lenin and Stalin. So these are some quirky facts about Soviet Union, but let us have a look at how did the map stand. So you had the Russian SFSR, and then now you see other countries like Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uyghur, Mongols, Manchu, which is Manchuria today, Uyghur refugees who are currently in use in China. So this was your entire map of Soviet Union. And in the previous class, we have learned how during the 1800s, the Russian Empire had taken control of all these lands and territories. And it had included them in their own geography, in their own sovereignty. तो सोवियत यूनियन जब ये बना, तो ये इस तरीके का इसका मैप का स्ट्रक्चर था. अच्छा, एक कैलेंडर के ऊपर भी बहुत डिबेट है. नाउ व्हाट इज द कैलेंडर डिबेट? जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि हम इंडिया में जो भी हॉलीडेज होती हैं, तो जैसे बसंत पंचमी ही था कल, राइट? तो माघ महीने में हम जा रहे हैं. अलग अलग टाइप के महीने हैं आपके हिंदी कैलेंडर में. और एट द सेम टाइम वी फॉलो द ग्रिगोरियन कैलेंडर विच इज वेस्टर्न कैलेंडर, जिसमें आपका संडे इज द हॉलीडे एंड यू हैव 30 days एंड 31 days, हर महीने का ऐसे डिविजन है. तो रशियन रेवोल्यूशन का टाइमलाइन बहुत लोगों के लिए इट इज कंफ्यूजिंग बिकॉज टिल February 1918 Russia used to use a different kind of calendar, which was a Julian calendar. They did not adopt the Gregorian calendar. वो बाद में they did. So Julian calendar was introduced by Julius Caesar in 46 BC, way back. And Julian calendar was a reform process of the Roman calendar के reaction में निकला था. And 45 BC में this took into place. And it had divided the year into 365.25 days and 12 महीना
right? Consequently, the Julian calendar is currently 13 days behind the Gregorian calendar. जैसे आज हो गया 27 तारीख, तो अकॉर्डिंग टू जूलियन कैलेंडर आज 14 है. It is 13 days behind. So 1st January in the Julian calendar is 14th January in the Gregorian calendar. However, most of the branches of the Eastern Orthodox Church, which is primarily in Eastern Europe, still use the Julian calendar for calculating dates and Easter ka and Christmas ka. That is one of the reasons why, as I told you, that a lot of East Europeans celebrate Christmas after 10-14 days, or Easter after 10-14 days of the Gregorian calendar. So Julian calendar आज भी it is used by Berber people of North Africa. Berber is basically a tribe. Bedouins बोलते हैं इनको. These are tribal belts in Middle East or West Asia, and Eastern Europe used to follow this calendar, the Julian calendar. इसीलिए dates में confusion होता है कि किस दिन revolution actually में शुरू हुआ. Gregorian calendar will give you a different date, but the Julian calendar is 14 days behind. तो अब शुरुआत होती है लेनिन के कैरेक्टर से. सो लेनिन का असली नाम was Vladimir Ilyich Ulyanov, who was born in a middle class serf family. Serf are like bonded laborers, जो feudal system में आप जानते होंगे. And he died in 1924. So in late 90, तो लेनिन की स्टोरी क्या है? लेनिन की स्टोरी ये है कि he was born and his father uh, passed away when he was 15 years old, and his mother had a half Jewish ancestry, जो according to some resources Lenin had no idea of. So after the death of his father, he was very disturbed, and he lost his faith in God. उसके बाद his brother Alexander was executed by the Russian monarchy for sedition. And when his brother was executed, that changed the entire perspective of Lenin and made him one of the believers of Marxism, Leninism. So Lenin was also a lawyer, and he was exiled to Siberia several times because of his so-called seditious activity against the monarchy. और 1893 में ही मूव टू सेंट पीटर्सबर्ग, और वहाँ एक बैरिस्टर के असिस्टेंट की तरह ही वर्कड, एंड देन ही also was working in the Marxist revolutionary cell. Now this is also very interesting. When Das Capital was written, Das Capital was written in 3 volumes. So the first 2 were published during the time of Karl Marx. Karl Marx dies in 1883. The last volume is written posthumously by his friend Frederick Engels. They both contributed to it. So now Das Capital was written in German language, which is a very difficult language. So when the publication of Das Capital came to the Russian Empire, they thought ki it is such a difficult language and they didn't understand the content of it. So they technically allowed the publication of it, thinking what kind of, मतलब क्या ही क्षति पहुंचाएगा. बट लेनिन स्टार्टेड रीडिंग इट. जब भी उसको जेल में डाल दिया जाता था तो वो कार्ल मार्क्स और एरिस्टोटल और इमानुएल कांत एंड बाकी के जितने लेफ्टिस्ट और इनलाइटनमेंट थिंकर्स हैं उनके बारे में पढ़ते रहता था. एंड देन ही स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग हिज ओन न्यूज़पेपर्स एट द सेम टाइम. और इसको बहुत बार अरेस्ट किया गया. सेंट पीटर्सबर्ग में ही वाज चार्ज्ड विद सेडिशन. 1901 में इसने लेनिन नाम अडॉप्ट किया. राइट? क्यों किया? क्योंकि साइबेरिया में एक नदी बहती है जिसका नाम लेनिन है. And that is how he started calling himself as Lenin. His real name was not Lenin. It was a pseudonym. तो लेनिन जो है, he was the Bolshevik party के leader. Bolshevik demanded immediate revolution. And इन्होंने 1917 का Bolshevik revolution भी लिया. He established Chika. Chika was this extraordinary secret police जो
काम करती है and will work undercover. And he started with a new economic policy and he dreamt of world revolution. Now let me give you an example through a tree. Actually, it will be easier for you to understand. Jesse, this is a tree, right? What you can see when you see this tree is the leaves of it. But any tree will not exist without the root, जो उसका बेस है. So मार्क्सिज्म का पहला प्रिंसिपल था to divide the society into a base जो उसको खड़ा करके रखता है and a super structure जो बाहर से आपको दिखता है. So Lenin believed in this ideology and he believed that your base is always your economic condition. आपकी आर्थिक व्यवस्था ही आपका बेस है और बाकी सारी चीजें जो आप अडॉप्ट करते हैं या फिर आपको आपकी जिंदगी में मिलती हैं, वो जो भी आपकी अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी है जो बर्थ से आपको मिलती हैं, बीट जेंडर, बीट क्लास, कास्ट, कल्चर, रिचुअल्स, रिलीजन, ये सब बाहर का है. दिस इज द सुपर स्ट्रक्चर जो बाहर से आपको दिख रहा है, लेकिन अंदरूनी क्या है? इट इज ऑलवेज इकोनॉमिक. तो अगर सोसाइटी दो भागों में बट गई है, विच इज द bourgeois, द रूलिंग ओनर क्लास, उसको बुर्जुआ वही बनाते हैं जो प्रोलेटेरिएट है, द वर्किंग क्लास, जिनका लेबर एक्सप्लॉइट हो रहा है. जैसे मास्टर स्लेव का अगर आप समझिएगा, तो एक स्लेव तब तक कोई नहीं बन सकता जब तक उसका कोई मास्टर नहीं हो, और कोई मास्टर नहीं बन सकता जब तक उसका स्लेव नहीं हो. तो उन्होंने आर्थिक परिस्थिति को केंद्रीय रूप में डाला कि दिस इज द बेसिक कॉन्टेक्स्ट in which everything emerges, be it your culture, religion, gender, all of it. और इस चीज के ऊपर इन्होंने काफी अपना भी थ्योरी दिया, which was Leninism. 1917 में दो रेवोल्यूशंस होते हैं. नॉर्मली पीपल टॉक ओनली अबाउट द अक्टूबर रेवोल्यूशन, लेकिन 1917 में दो रेवोल्यूशंस होते हैं आपके रशियन एम्पायर में. पहला, रशिया इज फेयरिंग वेरी बैडली इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो सार जो है रोमनोव, निकोलस द सेकंड, उसके खिलाफ जो है पूरा अपराइजिंग शुरू हो गया. आई टोल्ड यू व्हेन ही वाज इन given the position, so there was a stampede in which thousands of people were dying and there was a drought and famine. People were not happy with him and he was very alienated. उनको पता ही नहीं चल रहा था कि रशियन एम्पायर में हो क्या रहा है. तो फूड राइट शुरू हो गया. कहीं पे भी अगर एक चीज जो बहुत, इवन अरब अपराइजिंग में आप देखेंगे, जो बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी होती है, वो है व्हीट, ब्रेड, खाना. बिकॉज दैट इज व्हाट अ कॉमन पर्सन नीड्स. जहां उसका प्राइस बढ़ता है तो एक स्ट्राइक शुरू हो जाती है इन एनी कंट्री. तो वर्किंग कंडीशंस वे वेरी पुअर. और वर्किंग कंडीशंस क्या था? आपका रशियन एम्पायर थोड़ा बहुत उस समय प्राइवेटाइज हो रहा था, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज बन रही थी, मैक्सिमम पेजेंट्स थे जो बॉन्डेड लेबर की तरह काम करते थे, मैक्सिमम. इट वाज अ वेरी वेरी रूरल सोसाइटी, very rural in nature. And because they were not able to win the war and they were not able to establish, उनका प्रूशिया के साथ भी हुआ था, जापान के साथ भी हुआ था, they're losing the wars. तो रशियन आर्मी जो है वो भी हाथ खड़ा कर ली कि वी आर नॉट गोइंग टू शूट द प्रोटेस्टर्स जो रोमनोव्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं. उस समय लेनिन एग्जाइल में था इन स्विट्जरलैंड, because उसको often he was either arrested or put in exile. तो वो स्विट्जरलैंड में था and he raced to Petrograd, which is Saint Petersburg, and उसने रेवोल्यूशन को कंट्रोल करने का as the Bolshevik party leader जिम्मा उठाया. फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में क्या क्या होता है? तो 14th फरवरी को
1 लाख से ज्यादा वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं। जो डूमा है यानी उनका स्टेट काउंसिल है, इट इज ऑल्सो अटैक्ड। द गवर्नमेंट सेज कि यू आर यू नो क्रिएटिंग अ फूड शॉर्टेज। तो स्टेट काउंसिल के भी लोग सरकार से परेशान हो जाते हैं। फरवरी 19 को रेवोल्यूशन शुरू होता है। तो जो रोमनोव निकोलस द सेकंड है वो फूड राशनिंग शुरू करता है और पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है, जैसे पैंडेमिक के दौरान हुआ था कि पीपल गो एंड स्टार्ट पैनिक बाइंग। तो फूड का अवेलेबिलिटी और कम हो जाता है, वर्कर्स और नाराज हो जाते हैं। फरवरी 23 को जितने भी वर्कर्स हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो बिकॉज आई टोल्ड यू कि द ग्रिगोरियन एंड द जूलियन कैलेंडर आर डिफरेंट, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का उस समय प्रोटेस्ट चल रहा है फॉर वुमेन राइट्स एंड एम्पावरमेंट। तो वो भी दे स्टार्ट फाइटिंग विथ द वर्कर्स, लाइक फाइटिंग फॉर, मतलब इन स्पॉन्टेनिटी विद द वर्कर्स फॉर देयर राइट्स, कि हमें ज़ारिस्ट रजीम को हटाना है। 25 फरवरी को स्ट्राइक्स कंटिन्यू होती हैं, एक्सपैंड करती हैं। कहाँ 1 लाख वर्कर्स थे, अब 2 लाख लोग आ गए हैं, और वायलेंट क्लैशेस भी हो रहे हैं पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में। जो 26 जनवरी को फिर जो जार है वो ओपन फायर का ऑर्डर देता है, विच गोज अगेंस्ट हिम, ओपन फायर का ऑर्डर। सो 4 अप्रैल 1917 को लेनिन अपना अप्रैल थीसिस पब्लिश करते हैं, विच यू कैन सी एट द राइट साइड, कंडेमनिंग द प्रोविजनल गवर्नमेंट। जार हट जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसके बदले एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है टाइम बीइंग के लिए, एक्टिंग गवर्नमेंट। उसको क्रिटिसाइज करता है लेनिन और बोलता है कि ये इंपीरियलिस्ट है। ये जो टर्म है इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म को कैपिटलिज्म से लिंक करके इस पे बहुत काम जो है लेनिन ने ही किया है शुरुआती दौर में, कि इंपीरियलिज्म किस तरीके से एक कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी है, वेयर इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ colonialism, where you don't need military or boots on the ground to control a population. You are doing it through the means of production. Means of production का मतलब क्या होता है? जैसे if I want to have a चाय का दुकान, तो चाय का दुकान खड़ा करने से पहले I need to have many things. पहला कि I need to have things which are invisible, मतलब हवा, एयर, पानी। पानी तो विजिबल है, लेकिन हवा, एयर, which I take for granted कि होगा ही। दूसरा होता है कि आई नीड अ लैंड, एक दुकान की जगह चाहिए जिसका मैं रेंट पे करूं। देन आई नीड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, विच का विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉस्ट इंड्यूसिंग। देन आई नीड ऑल द यूटेंसिल्स टू मेक टी। एक नहीं, 4-5 यूटेंसिल्स चाहिए मुझे, एक पतीला नहीं चाहिए, बहुत सारे चाहिए। Then I need tea, different kinds of tea, biscuits, all of it. Then I need laborers who will work with me. I need a gas stove also, or PNG connection. And I need chairs and tables and everything. तो ये सारा investment गया मेरा to produce something, क्या, एक cup of tea. ये सब means of production है। मतलब कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के पीछे आपकी क्या क्या चीजें आ रही हैं। So, in a very simple way, capital means money, but that is very superficial. It is actually every control of means of production. तो human beings उसमें human capital है, आपका इकोनॉमिक कैपिटल लगता है, फिर इन्वेस्टमेंट्स एंड मेनी थिंग्स। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ही आपका, अगर if you have divided the world into developed, developing, and underdeveloped nations, and you have created, you means not you, but if there is an entire structure कि जो डेवलपिंग कंट्री है और अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी, और डेवलप्ड कंट्रीज जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का हेड होंगी, वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, एंड देन दे विल सेल, and in the colonies and everywhere else, even if countries are becoming independent, they don't have the control over the universal currency like dollar. They don't have control over many of these globalization का जो repercussion है. So this is a form of imperialism which Lenin questioned, and he said कि
these will further, this is not socialist, this is not Marxist. We want a Marxist revolution, and we want everyone to be in an egalitarian or equal society. तो फिर से रेवोल्यूशन होता है 1917 में। फरवरी में तो हुआ ही, फिर अक्टूबर में होता है। बोल्शेविक पार्टी इसमें जिम्मेदारी पूरा लेती है, और ये आपका 7 नवंबर 1917 में सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू होता है। जितने भी अर्बन वर्कर्स हैं, जो बहुत कम थे एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो ऑर्गेनाइज करने लगते हैं अपना काउंसिल। काउंसिल को ही सोवियत बोलते हैं। सोवियत का मतलब काउंसिल होता है। तो रेवोल्यूशनरीज जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट और उसके एक्शन को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। उनका पहला क्रिटिसिज्म था रोमनोव डायनेस्टी, जो खत्म हो गया। फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट आई, उसके खिलाफ फिर से रेवोल्यूशन आपका 1917 में हुआ। दिसंबर 1917 में बोल्शेविक्स जब पावर ले लेते हैं, तो वो अबॉलिश कर देते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। अब देखो, इस चीज को बहुत सिंपल तरीके से समझना। एक इंसान दूसरे इंसान से अलग कैसे है? एक तो फेशियल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स, बट उसके अलावा आप अलग हो बिकॉज ऑफ योर जेंडर, बिकॉज ऑफ योर क्लास, बिकॉज ऑफ योर रिलीजन। The moment I talk class, then I'm talking about currency and money and private property. Private property की मेरा घर, मेरा जगह, मेरा ये, अगर वही अबॉलिश कर दिया जाए तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एन इगैलिटेरियन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू लेनिन। और उसने मैरिज, डिवोर्स लॉज, लीगल स्टेटस ऑफ विमेन, बहुत सारी चीजों पे नया नया ऑप्शन दिया। फिर आपका नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आया। द नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज वेशेंखा, जो सुप्रीम सोवियत ऑफ नेशनल इकोनॉमी के तहत आया। और 7 दिसंबर को उसने चीका, जो स्मॉल एजेंसी है, जो ब्रेजेंस्की द्वारा उन्होंने शुरू किया, कि कोई भी अगर बोल्शेविक्स के खिलाफ क्वेश्चनिंग कर रहा है तो उनको पकड़ लिया जाएगा, स्पेसिफिकली मेंशेविक्स हु बिलीव्ड इन अ ग्रेजुअल रिफॉर्म बेस्ड चेंज। तो 26 एजेंट्स थे इनके, और ये दिसंबर में इन्होंने शुरू किया। बट सिविल वॉर कंटिन्यूड, सिविल वॉर वाज कंटिन्यूइंग, इट विल कंटिन्यू टिल 1922-23। इसी के मीनवाइल ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क साइन होता है। रशिया को, जो सोवियत यूनियन है, उसको 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड देना पड़ता है टू जर्मनी। 50 मिलियन पीपल they have to give away. 27% of farming land they have to give away. Maximum of their land they had to give away to Ukraine. और यूक्रेन इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। तो ये सोवियत यूनियन के लिए बहुत बड़ा आघात था। 74% ऑफ आयरन एंड कोल डिपॉजिट देना पड़ा। 3 बिलियन रूबल्स उनको पे करना पड़ा। तो ये बहुत ही ज्यादा आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हारने के कारण ये सारी चीजें इम्पैक्ट की। अब 1918 में क्या होता है? 1918 में देखो, आप 1 लिखा है और स्लैश करके 14, क्योंकि 14 दिन का डिफरेंस है जूलियन और ग्रिगोरियन कैलेंडर में। तो जो नया बोल्शेविक गवर्नमेंट आता है, वो रशिया को जूलियन से ग्रिगोरियन कैलेंडर में कन्वर्ट कर देता है। सो 1 फरवरी चेंजेस टू 14 फरवरी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, मतलब 14 दिन वेट भी नहीं करना पड़ा। एनीवे, फिर 3 मार्च को ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क साइन होता है बिटवीन जर्मनी एंड रशिया, और ये वर्ल्ड वॉर 1 से रशिया बाहर निकलता है। मार्च 8 को बोल्शेविक पार्टी अपना नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी हो जाती है। बट इट इज नॉट, कम्युनिज्म हैज बीन अ यूटोपिया, ये कहीं नहीं देखा गया। इट इज नॉट सीन इन चाइना ऑल्सो, और क्यूबा, वेनेजुएला, कहीं नहीं। बिकॉज कम्युनिज्म में, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट, मतलब सरकार भी नहीं रहेगी, नो एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तीनों चीजें कहीं हुई नहीं है। So communism is a utopia, but they use the terminology communist. 11th of March को capital of Russia is moved from Saint Petersburg to Moscow. और फिर आपका रशियन सिविल वॉर शुरू हो जाता है between the Bolsheviks and the Mensheviks, or the Red Army and the White Army. 1918 के जुलाई 17 को Tsar Nicholas and his family are executed, जो स्टोरी मैंने आपको बताई थी।
लेकिन लेनिन के खिलाफ भी असैसिनेशन के काफी अटेम्प्ट्स किए गए, जो उसको 30 अगस्त को काफी बुरी तरीके से वुंडेड रखे। सिविल वॉर रेज कर रहा है। बोल्शेविक्स अपना पावर कंट्रोल कर ही रहे हैं, और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स मतलब सोवियत यूनियन फॉर्मली अनाउंस होता है ऑन December 30, 1922। वॉर कब शुरू हुआ? 1917 में। लग कितना गया साल इनको? ऑलमोस्ट 5। तो 1922 में आपका एग्जैक्टली सोवियत यूनियन फॉर्म होता है। अब सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म इज कंसिडर्ड एन इंटरमीडिएट फेज बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। इसमें क्या होता है कि सरकार पूरा कंट्रोल लेती है हर चीज का, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। सरकार की ही इंडस्ट्रीज होती हैं, सरकार ही सारा चीज इकोनॉमी का एस्पेक्ट मैनेज करती है। फ्री मार्केट या लेसे फेयर कैपिटलिज्म नहीं एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारी चीजें जो थी, जैसे फॉर एग्जांपल जो कैपिटलिस्ट रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे, दैट बचपन से ही हमें सिखाए जाते हैं अनकॉन्शियसली कि compete करो, फर्स्ट रैंक लाओ, ये सारी चीजें, दीज आर कैपिटलिस्ट रिफ्लेक्सेस ऑफ कंपटीशन, इंडिविजुअलिटी एंड एलिनेशन। फिर आप जब काम करते हो तो आपका स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे आपने ह्यूमैनिटीज चूज की तो बैचलर्स में फिर उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करोगे, पॉलिटिकल साइंस, फिर उसके बाद मास्टर्स में उसके और डेप्थ में जाओगे, फिर पीएचडी में और डेप्थ में जाओगे। इन द सेम वे साइंस चूज करोगे तो आपके लिए इंजीनियरिंग और मेडिसिन के ओपन फील्ड्स हैं। लॉ चूज करोगे तो लॉ के फील्ड्स हैं। तो आप स्पेशलाइज कर रहे हो और उसी में आप काम कर सकते हो। यू कैन नॉट कीप चेंजिंग योर प्रोफेशन, राइट? सोवियत यूनियन में ऐसा नहीं था। सोवियत यूनियन में स्कूल का एजुकेशन फ्री था। जिस चीज के लिए भी आपको सैलरी चाहिए वो सब फ्री है। बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन फ्री है। घर का रेंट देना है, घर फ्री है। ट्रांसपोर्ट यूज करना है, ट्रांसपोर्ट फ्री है। यू एक्चुअली हैड टाइम, लीजर टू हैव अ हॉबी। कम्युनिटी लिविंग पे ज्यादा जोर था, कम्युनिटी सॉलिडारिटी पे ज्यादा जोर था। जो मान लो कि सरकारी इंडस्ट्रीज में कोई अच्छा काम कर रहा है तो सरकार उस परिवार को जमीन देगी। ऐसा नहीं है कि उनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता था, नहीं, ऐसा नहीं है। तो एवरीथिंग वाज फ्री, वॉट एवर इज योर। आज के दिन रोटी कपड़ा मकान जो आपका सबसे बड़ा क्वेस्ट है, इसी को पूरा करते करते, इफ यू रिमेम्बर द मैस्लोज प्रिंसिपल की, सबसे पहला आपका खुद का सर्वाइवल एंड देन यू गो टू डिफरेंट स्टेजेस। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे एंड में आता है। तो मोस्टली जो जनता है, बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, पहले ही स्टेज में फंसी रह जाती है कि रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है। सोवियत यूनियन में ऐसा नहीं था। और everyone had the right to work. If you want to work as a plumber one day and then you want to work as an electrician, you can switch your jobs. You can have a hobby. You can have actual leisure to enjoy. There was no concept of profit. So there was no concept of that you have to produce this kind of result immediately. So ये एक यूटोपियन सोसाइटी की फेज रखी गई। 1922 में लेनिन को फर्स्ट स्ट्रोक आता है और December 15 को नेक्स्ट स्ट्रोक आता है, एंड देन इवेंचुअली रिटायर्स एंड ही डाइज। स्टालिन जो है जनरल सेक्रेटरी की तरह अपॉइंट होते हैं, एंड वो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो स्टैब्लिश करते हैं। Now there are a couple of interesting things about Lenin and Stalin and all of them. But one thing is sure कि a lot of historians have tried to reimagine a structure कि अगर स्टालिन नहीं होता या फिर कोई और पावर में होता तो किस तरीके से सोवियत यूनियन का स्ट्रक्चर चेंज होता। स्टालिन जो है, like a little bit of history about Stalin.
स्टालिन जो है उसका पूरा नाम था जोसेफ विसारोनोविच स्टालिन, और ये 18 दिसंबर 1878 में ही वाज बोर्न एंड ही डाइज इन 1953. सो ऑलमोस्ट गुड 20-25 years ही वाज इन पावर. और ये जॉर्जिया में पैदा हुए थे. ही वाज बोर्न इन जॉर्जिया एंड 1924 लेनिन के डेथ के बाद till 1953 he was the general secretary of the Communist Party of Soviet Union, not the president. There is no concept of president or prime minister. जनरल सेक्रेटरी एक काउंसिल बनेगी, वो हेड करेगी. तो स्टेट में किसी एक इंसान के ऊपर पूरा पावर नहीं है. जो स्टालिन इस चीज को चेंज कर देता है. He becomes the chairman of the Council of Ministers of the Soviet Union. Constitutionally, he gives himself that power. एंड ये कलेक्टिव लीडरशिप के जो कॉन्सेप्ट था लेनिन का कि कलेक्टिवली लीडरशिप करेंगे, उससे हटके ये अपना खुद का डिक्टेटर बनना शुरू हो जाता है 1930s से. इसने मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म दोनों का कॉन्सेप्ट चेंज करके स्टालिनिज्म शुरुआत करता है. He starts with the entire concept of Stalinism, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं एंड बहुत सारे रोल इसमें प्ले करते हैं. स्टालिन जो है इसके जो पेरेंट्स थे दे ऑल्सो वेर फ्रॉम द रशियन एम्पायर, और इसका जो रूट्स है जूइश, रशियन, आर्मेनियन, अजेरी, जॉर्जियन है. और ये 18 दिसंबर को पैदा होता है. 29 दिसंबर 1878 को ये बैप्टाइज हो जाता है और इसका निक नेम होता है सोसो, SOSO. एंड इसके बाकी के भाई बहन एवरीवन डाइज. ही इज द ओनली चाइल्ड दैट is able to survive the infancy. And just a second. So Stalin is able to, he's the only child who is able to survive the infancy and he takes care of it. इसके फादर एक कॉबलर होते हैं but slowly his business starts to drain. He's not able to make profit. His father becomes alcoholic. वो अपने बेटे और वाइफ को मारना भी शुरू कर देते हैं. तो स्टालिन और उसकी मम्मी जो है बचपन में ही अपना घर छोड़ देते हैं एंड देन दे स्टार्ट वॉन्डरिंग अराउंड, एक रेंटेड रूम से दूसरे रेंटेड रूम में, और फिर फाइनली एक फैमिली फ्रेंड के घर में रहने लगते हैं. इसकी मम्मी हाउस क्लीनर की तरह काम करती हैं ताकि अपने बच्चे को वो स्कूल भेज सकें, और वहां के ऑर्थोडॉक्स स्कूल में ये एडमिशन भी ले लेते हैं. एंड बचपन से ही गॉट इनटू अ लॉट ऑफ फाइट्स बट एकेडमिकली ही वाज वेरी साउंड एंड वेरी स्ट्रांग. इनके पास पेंटिंग और ड्रामा, पोइट्री, सिंगिंग, ये सब का ही वाज वेरी टैलेंटेड इन ऑल ऑफ दैट. लेकिन ही हैड सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स. कभी उनको स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, कभी उनको कोई ना कोई और हेल्थ डिजीज हो जाएगा. एंड ही ऑल्सो हैड अ डिसेबिलिटी इन हिज लेफ्ट आर्म. तो आप जब भी स्टालिन का फोटो देखेगा तो उस पर गौर से देखिएगा, उसके लेफ्ट आर्म को देखिएगा. फिर उसके बाद फिर ऐसे ही इनको स्कॉलरशिप मिलता है टू स्टडी इन ऑर्थोडॉक्स स्कूल जहाँ पे प्रीस्ट बनना है. तो उसकी ये पढ़ाई करते हैं और वहाँ बहुत अच्छा ग्रेड्स लाते हैं. नेचर, लैंड, पेट्रियोटिज्म, ये सारी चीजों पे ही काफी लिखते हैं. ग्रिगोरियन क्लासिक्स और ये सब में ही एक्सेल्स वेरी मच. बट धीरे धीरे करके जब वो बड़े हुए तो ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑल ऑफ इट एंड ही इज रस्टिकेटेड फ्रॉम द स्कूल बिकॉज इनका बहुत ही रिबेलियस बिलीव है और ये ओपनली अपने आप को फिर एथीस्ट डिक्लेयर कर देते हैं. फिर एक फॉरबिडन बुक क्लब भी ज्वाइन कर लेते हैं. वहां पे काफी सारा रेवोल्यूशनरी किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं एंड दैट इज हाउ ही नाउ चेंजेस इनटू एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंड एंटी रोमनोव डायनेस्टी एंड एवरीथिंग.
और उसके बाद जो मार्क्सिज्म है, दास कैपिटल, वो भी उन्होंने खुद से पढ़ा। लेनिन तो दूसरे लेवल पे था, उसने दास कैपिटल लिखा भी था रशियन में उसको ये पढ़ा इन्होंने। और उसके बाद फिर सीक्रेट मीटिंग्स जो रात में होती थी सोशलिस्ट ग्रुप की, उसमें भी वो ज्वाइन करते हैं। और इस तरीके से ही स्टार्ट्स, मतलब एंटी इस्टेब्लिशमेंट काम करना शुरू कर देते हैं। और जब आपका 1917 में रेवोल्यूशन होता है तो उसमें भी ही प्लेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। और लेनिन के जानकार रहते हैं, ही इज देयर, ही सपोर्ट्स लेनिन इन एवरीथिंग। और बोल्शेविक पार्टी के ही थे। उन्होंने आर्टिकल काफी लिखना शुरू किया था मार्क्सिज्म एंड नेशनल क्वेश्चन के ऊपर। और स्टालिन को मैन ऑफ स्टील बोला जाता था, बिकॉज दैट काइंड ऑफ aura that he used to permeate around himself. 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो ये भी एग्जाइल में थे। उसके बाद ये वापस आए रशियन आर्मी में, ही वाज कंस्क्रिप्टेड। उसके बाद फिर ही पार्टिसिपेटेड इन द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, ही पार्टिसिपेटेड इन द 1917 अक्टूबर रेवोल्यूशन आल्सो, एंड देन ही वाज अ मेंबर ऑफ द लेनिन्स गवर्नमेंट आल्सो। और जब लेनिन ने अपने आप को चेयरपर्सन डिक्लेयर किया तो ही आल्सो वाज अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी। और लेनिन का जो चीका फॉर्मेशन था ना, चीका सीक्रेट पुलिस, उसके एकदम फॉर्मे, मतलब ही वाज इन फुल सपोर्ट ऑफ इट, कि बहुत अच्छा किया है, रेड टेरर होना चाहिए अगेंस्ट द व्हाइट आर्मी, मेंशेविक्स के खिलाफ। और उसके बाद फिर ही स्टार्ट्स गोइंग अप द लैडर एंड बिकम्स द पावरफुल डिक्टेटर ऑफ सोवियत यूनियन। इनके गोल्स एंड आइडियाज क्या थे? ही वांटेड टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बट स्टेट कंट्रोल्ड, सुपर पावर बनना चाहते थे, कम्युनिज्म को स्प्रेड करना चाहते थे, जितना भी ऑपोजिशन है उसको खत्म कर दो, एंड एंटी डेमोक्रेसी थे। एंड जो भी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के अंदर ही फार्म्स और इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। इन्होंने पावर अपना मेंटेन किया थ्रू चीका। उसके बाद ग्रेट पर्ज किया, पर्ज मतलब कि बहुत ज्यादा जितने भी पॉलिटिकल ऑपोजिशन के मेंबर्स थे सबको मारा। प्रेस वाज कंप्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। लेबर कैंप्स इन्होंने साइबेरिया में शुरू किए। लेबर, साइबेरिया वाज लाइक योर अंडमान निकोबार की, भेज दो सारे प्रिजनर्स को एग्जाइल में। तो वहां पे उन्होंने एग्जीक्यूशंस और ये सारा चीज शुरू किया। एंड देयर वाज अ कल्चर ऑफ पीपल डिसअपियरिंग फ्रॉम द स्ट्रीट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टालिन, कि कोई भी अगर ऑपोजिशन कर रहा है तो गायब हो जाएगा, और गायब हो गया तो साइबेरिया में मिलेगी लाश। उसने फिर गोल्ड्रो प्लान भी शुरू किया कि कैसे सोवियत इकोनॉमी को फिर से रिस्ट्रक्चर करेंगे, पूरी कंट्री को इलेक्ट्रीफाई करेंगे। ये जो 5 ईयर प्लान्स हम भी लाए थे, ये सोशलिस्ट इन नेचर था। ये 5 ईयर प्लान्स का पूरा कॉन्सेप्ट स्टालिन का था, उसने शुरू किया था कि 5 साल का प्लान्स बनाएंगे प्लानिंग कमीशन के द्वारा। सो 1922 में ही बिकम्स द जनरल सेक्रेटरी। 27 में ट्रोत्स्की और जिनोविव को, जो इसके ऑपोजिशन मार्क्सिस्ट थे, उनको एक्सपेल कर दिया, एग्जाइल कर दिया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया। उसके बाद जो कुलाक्स थे, जो बॉन्डेड लेबरर्स थे, उनको गुलाग में डाल दिया। गुलाग वाज लाइक अ प्रिजन कैंप, और फोर्स लेबर करने के लिए कुलाक्स वर लाइक बॉन्डेड लेबर्स। और जो रूजवेल्ट थे उस समय यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने स्टालिन के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन दे दिया, एंड दे बोथ स्टार्टेड डूइंग ट्रेड अग्रीमेंट। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले आपको याद रहना चाहिए कि हिटलर ने साइन किया था एक पैक्ट विथ सोवियत यूनियन, कि वो इन्वेड नहीं करेगा सोवियत यूनियन को। दैट पैक्ट वाज कॉल्ड एज मोलोटोव रिबेंट्रोप पैक्ट। और 1941 में इसको साइन किया था। लेकिन हिटलर बीइंग हिटलर, उसको ये लगता था कि पोलैंड जो है वो तो उसी का पार्ट है, तो इन्वेड कर दिया। तो उसके बाद रेड आर्मी ने, दे गॉट प्लंज्ड इनटू सोवियत, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड हुआ, जो 1942 से 43 तक चला। जर्मनी के लिए सीवियर ब्लो था। यहाँ पे ज्योग्राफी जीतती है, हिस्ट्री ने। ज्योग्राफी कैसे जीतती है? जब हिटलर के कमांडोज और आर्मी आती है सोवियत यूनियन, अब सोवियत यूनियन का साइज मैंने आपको दिखाया है, और साइबेरिया देख लो कितना बड़ा है, और वहां बहुत ठंडी पड़ती है। तो जब सोवियत यूनियन, जब जर्मनी के आर्मी आई, तो आधे तो इसलिए दे डाइड बिकॉज दे कुडंट टेक द वेदर, -30 डिग्रीज, -40 डिग्रीज।
They were not ready. Soviet Union के troops were ready because they were acclimatized to it. लेकिन German troops were not. Here geography made Soviet Union win. It was due to geography and the geographical placement of Siberia and other things के जीते. तो ये टर्निंग पॉइंट हो गया. सोवियत यूनियन का बहुत लॉस हुआ. 27 मिलियन पीपल डाइड एनीवे, और 2.8 मिलियन सोवियत प्रिजनर्स ऑफ वॉर डाइड ड्यू टू स्टारवेशन, मिसट्रीटमेंट. बहुत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनका आघात भी पहुंचा. As you can see, where was the war fought? There was the Eastern Theater and there was the Pacific Theater. So in all these areas that you can see as orange marked, these were places where the Second World War took place in terms of military, army, violence. So you can see Southeast Asia, you can see some parts of Africa, Libya. Libya को तो colonize Italy ने किया था, Mussolini ने किया था colonize. And Mussolini was very much infatuated by Hitler, but Hitler never cared about much about Mussolini. But Mussolini का एक चीज था कि अरे इटालियंस का पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, इटली यही है, तो इटालियंस का पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, व्हाट टू डू, हाउ टू डिस्प्लेस पीपल, हम कहाँ पे अपने लोगों को भेजें, तो लिबिया भेज देते हैं, जो डेजर्ट है, उसके पास एक रिवर भी नहीं है लिबिया के पास, तो वहां पे लोगों को भेजना शुरू कर दिया. एंड ही वाज वेरी क्लियर कि नहीं, हम तो डीपॉपुलेट कर रहे हैं अपने कंट्री को. एनीवे उसने 1928 में लैथरन ट्रीटी साइन की, क्योंकि मुसोलिनी को पता था कि अगर क्लर्जी का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो भाई आप कितने भी सोशलिस्ट हो, कोई फायदा नहीं है. तो वेटिकन सिटी फिर उसके कारण बना, लैथरन ट्रीटी के कारण. तो ये सारी चीजें, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाइट हो रहा है. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन है? आपका यूके, फ्रांस, यूएस, सोवियत यूनियन एक साइड है, दूसरी साइड जापान है, इटली है, जर्मनी है. चाइना भी आ जाता है सोवियत यूनियन के साथ, क्योंकि चाइना ऑलरेडी जापान से प्रताड़ित है. तो ये सारे आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एस्पेक्ट्स थे. फिर आपका 1950 में शुरू होता है कोल्ड वॉर. Normally people say it is an ideological war. It was not just an ideological war. It was actually also a war that did not take place in the geography of Soviet Union or US. As you can see, दोनों कितने बड़ी geographies हैं. It did not take place in that उनके country में, but in Korea, in Vietnam, Iran, Iraq, Laos, Cambodia, it took place. Cold War took place. So Cold War जो है, it is, instead of saying it is a ideological war between communism and capitalism, it is better to say that it was a political tension and a military rivalry, because people died. And सोवियत यूनियन और यूएसए ने किया फुल स्केल का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी किया, लेकिन अपनी ज्योग्राफी में नहीं, दूसरी कंट्रीज में. 1945 से 1989 तक आपका जो विंस्टन चर्चिल बोलते हैं कि एक ग्रेट आयरन कर्टन बन गया है, आयरन कर्टन इन यूरोप, ईस्टर्न यूरोप को हटा दिया है वेस्टर्न यूरोप से, और बर्लिन सिटी के बीच में है. इट इज लाइक द अपार्थीड वॉल ऑफ इजराइल. बहुत लंबा वॉल खींच दिया. ईस्टर्न बर्लिन के लोग वेस्ट बर्लिन नहीं जा सकते, वेस्ट बर्लिन के लोग ईस्ट बर्लिन नहीं जाते. जैसे इमेजिन कि दिल्ली को दो भाग में पार्ट कर दो, अब लो आप नहीं मिल सकते अपने रिलेटिव, फैमिली और ये किसी से. तो आपकी बहुत सारी कंट्रीज में कोल्ड वॉर लड़ा गया. ग्रीस, टर्की, कोरिया, वियतनाम, इथियोपिया, अंगोला, मोजाम्बिक, कंबोडिया, निकारागुआ, क्यूबा. और हर कंट्री में टेंशन थे, हर कंट्रीज में स्पाइस थे, हर कंट्री में स्पाइस थे, या तो अमेरिकन नहीं तो सोवियत. और क्यों शुरू हुआ? तो भाई यूएस ने नेटो शुरू किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की. हम अपना यूएस और ये यूरोपियन डिफेंस के मिलिट्री पर्सनल को मतलब डिप्लॉय करेंगे जहां पे भी हमें खतरा लगेगा. एंड स्टालिन इज लाइक, क्या खतरा लगेगा, अभी तो साथ में थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. एंड ही बीइंग अ डिक्टेटर हिमसेल्फ, ही इज लाइक, हम वॉर्सो पैक्ट करेंगे, जिसमें वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का बना दिया कि हम भी एकदम, नाटो का उल्टा था वॉर्सो, बट वॉर्सो कुड नॉट सर्वाइव, नाटो सर्वाइव्ड. अब वॉर्सो पैक्ट जो है 1945 से 1989 तक चला. एक और प्रॉब्लम था स्टालिन का, विच वाज कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूएस ने, they gave something called as a Marshall Plan to all these European countries to recover financially. And जैसे ही वो मार्शल प्लान दिया, एड दिया, that made US like a super power. और उसने सोवियत यूनियन को कोई एड नहीं दिया. तो स्टालिन started feeling that kind of alienation कि there is this kind of
politics that is being played out by US now. तो आपके वॉर्सो पैक्ट में पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, ये सारे आपके कंट्रीज आ गए। फिर स्टालिन 1953 के बाद दूसरा आता है निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव जो है वो डीस्टालिनाइजेशन लाता है। जैसे हर एडमिनिस्ट्रेशन प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के इरेज करने में ही आधा एडमिनिस्ट्रेशन लगाती है, तो ये भी निकिता क्रुश्चेव का था कि he was the first secretary of Communist Party of Soviet Union from 1953 to 64, and he was the chairperson of country's Council of Ministers from 58 to 64. क्रुश्चेव ने कम्युनिस्ट वर्ल्ड को स्टन कर दिया। उसने जोसेफ स्टालिन के जितने भी क्राइम्स है उसके लिए एलिनेशन मतलब सेपरेट किया सोवियत यूनियन को, बिकॉज बहुत क्राइम्स किए थे। स्टालिन वाज लाइक द हिटलर ऑफ सोवियत यूनियन, and he embarked on something called as de-Stalinization. और सोवियत मिलिट्री फोर्सेस को उन्होंने जो एंटी कम्युनिस्ट अपराइजिंग हंगरी और बाकी की कंट्रीज में हो रही थी उसको भी सप्रेस करने के लिए भेज दिया। मीनवाइल, और वो यूएस के साथ भी दोस्ती करने की कोशिश की उसने, बहुत सारी कंट्रीज के साथ दोस्ती करने की कोशिश की उसने। 1950s में चाइना का माओ जेडोंग का क्रुश्चेव के ये पूरे रिविजनिज्म से स्प्लिट हो गया। काहे कि माओ का कुछ और आइडिया था ऑफ माओइज्म। ये देखो जो सब अपना इज्म निकालते रहे। तो माओइज्म का ये कहना था कि देयर इज टू बी अ रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशनरी पार्टी होनी चाहिए। अगर रेवोल्यूशनरी पार्टी नहीं है और वो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी नहीं है और वो उसका स्टाइल नहीं फॉलो करती है, तब वर्किंग क्लास का एम्पावरमेंट पॉसिबल ही नहीं है और आप इंपीरियलिज्म को डिफीट नहीं कर सकते। तो उसको निकिता क्रुश्चेव की पॉलिसीज पसंद नहीं आई, तो चाइना और सोवियत यूनियन का स्प्लिट हो गया। तो एज यू कैन सी, जोसेफ स्टालिन के बाद निकिता क्रुश्चेव आया, फिर लियोनिड ब्रेजनेव आया, यूरी एंड्रोपोव और कॉन्स्टेंटीन चेरनेकोव। ये दोनों बहुत ही एक एक साल 2-2 साल के लिए थे, तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फिगर्स नहीं है। एंड फिर मिखाइल गोर्बाचेव आता है, हु इज द वेरी फेमस पर्सनालिटी। अब क्रुश्चेव एक पॉलिसी शुरू करता है द थॉ करके, which is a change in the economics, politics and culture of Soviet Union. कि अलग अलग कंट्री से ओपन करो, ट्रेड करो, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाओ, ट्रीटीज बनाओ, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाओ लोगों का, सेंसरशिप को रिलैक्स करो, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाओ। लेकिन इसके रिफॉर्म्स बहुत प्रोडक्टिव हो नहीं पाए। इन 1962 जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, जब क्यूबा में सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर मिसाइल डाल दिया था, तो बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि यूएस ने भी टर्की और ग्रीस में न्यूक्लियर मिसाइल डाला था। ये हिस्ट्री नोटिस ही नहीं करता है, सब क्यूबा का बात करते हैं। उससे पहले ग्रीस और टर्की में यूएस ने भी तो डाला था, छुपा छुपा के। तो उसके रिटेलिएशन में क्यूबा में डाल दिया इन्होंने। अब क्यूबा में इन्होंने डाल दिया तो उसके बाद जो है आपका एकदम सीधे न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी बूम। तो फिर क्रुश्चेव ने फाइनली अग्री किया कि वी विल नॉट डू इट अगर कैनेडी क्यूबा को इन्वेड नहीं करता है। तो फिर वो मिटिगेट होता है, नहीं तो वो हो जाता। यहाँ पे जो है जब आपका कीबोर्ड ठीक से काम ना करे तो ऐसे ही होता है। ये 0 नहीं है। तो फिर क्रुश्चेव हटता है, उसके बाद बहुत सारा लीडरशिप का क्राइसिस होता है। फिर लियोनिड ब्रेजनेव आता है जनरल सेक्रेटरी बनके। ब्रेजनेव क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्रेजनेव अपना एक डॉक्ट्रिन लेके आता है। वो बोलता है कि सोवियत यूनियन और वॉर्सो पैक्ट के जितने भी एलाइज हैं वो चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड करेंगे और वहां पे जो भी अपराइजिंग हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे। अब अपराइजिंग काहे हो रहा है? सोवियत यूनियन डिड नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। बाकी के इनके जो सैटेलाइट स्टेट्स थे, they were ruled by a very strong clergy which was Eastern Christian Orthodox. तो they wanted their freedom कि नहीं, we want to be Christian, और सोवियत यूनियन लाइक नो। तो रिलीजन के मुद्दे पे बहुत सारा अपराइजिंग हो रहा है और ब्रेजनेव उन सबको कंट्रोल करने का कोशिश किए जा रहा है और ये ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन निकालता है एंड जस्टिफाई करने लगता है मिलिट्री इंटरवेंशन। अब नेटो में देखो, यूएस यूके को इंटरवीन नहीं ना कर सकता है।
नेटो तो बाकियों के लिए है ना, जो नेटो का पार्ट नहीं है। अब तुम वॉर्सो पैक्ट का पार्ट हो और अपने ही सैटेलाइट स्टेट को इंटरवीन कर दोगे तो वॉर्सो पैक्ट क्या रहा? तो इसीलिए वॉर्सो पैक्ट खत्म हो जाता है कि ये क्या है। 1985 में फिर गोर्बाचेव आते हैं। गोर्बाचेव को इतना मतलब अब्यूज किया गया है ना हिस्ट्री में, इन द सेंस बाय द इंटायर हिस्टोरियंस, कि सोवियत यूनियन को खत्म कर दिया इसने। अरे भाई, अगर एवरीथिंग इज, look at the size of your Soviet Union. Look at the number of people. If state is giving everything for free, the state will one day or the other run into a fiscal deficit. It is common sense. आज के दिन यूके जो फ्री में एनएचएस देता है, नेशनल हेल्थ सर्विस, वो बैंकरप्ट होने को डेब्ट पे है। यूके में आप जाइए, कोई भी चीज मतलब आपको प्रिस्क्रिप्शन कुछ भी पे नहीं करना है, सर्जरी बड़ा सा बड़ा पे नहीं करना है। हाँ, लेकिन आपका नंबर बहुत लेट आएगा। आपको अभी अपना किडनी का ऑपरेशन करना है, कुछ दिक्कत है, लेकिन आपका नंबर आएगा 4 साल बाद। लेकिन वो होगा किडनी का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू पे द डॉक्टर। तो स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा फिस्कल डिफिसिट था, फाइनेंशियल बर्डन था। तो गोर्बाचेव आया, उसने देखा ये क्या हो रहा है, तो उसने चेंजेस किए। संभल नहीं रहा था, वॉर्सो पैक्ट भी खत्म हो चुका था, तो उसने ग्लासनोट और प्रेस्ट्रोइका किया। ग्लासनोट का था कि पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को चाहिए, सरकार की सेंसरशिप नहीं चलेगी, तो डेमोक्रेटिक। दूसरा, कोल्ड वॉर को एंड किया। 1988 में सोवियत यूनियन में जो बैठे हुए थे मुजाहिदीन बना रखे थे, मतलब उन्होंने एज अ रिएक्शन बनाया था इन अफगानिस्तान, वो विड्रॉ करना शुरू किया। 1979 में दे हैड इन्वेडेड अफगानिस्तान। गोर्बाचेव ने इंटरफेयर करने के लिए भी मना कर दिया कि जो कंट्री में अगर अपराइजिंग हो रही है एंड दे वांट अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारी सैटेलाइट स्टेट्स होने दो, वी विल नॉट। तो आपका बर्लिन वॉल टूट गया, उसको तोड़ने में 2 साल लगा। पीपल वे वेरी हैप्पी, जर्मनी यूनाइट हो गया। तो उसने सिंपल सा किया कि केजीबी जो सीक्रेट सर्विस है उसको रिफॉर्म किया, कम्युनिस्ट पार्टी को रिफॉर्म किया, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन को नो बोला कि नहीं ये नहीं होगा, ग्लास नॉट किया, इकोनॉमी को ओपन अप करने की कोशिश की, इंफॉर्मेशन लोगों को मिले उसको ओपन करने की कोशिश की। आपका सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। एज यू कैन सी, द यूनियन इज बरीड, व्हाट्स बीइंग बोर्न। ये न्यूयॉर्क टाइम्स प्रिंट्स इट, एंड किस तरीके से आपका सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है, अदर अदर कंट्रीज बनती हैं। गोर्बाचेव जो है, उसने पूरा रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की, ट्रांजिशन करने की कोशिश की फ्रॉम सोशलिज्म टू डेमोक्रेसी। उसने बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की है। उसको नोबेल प्राइज भी मिला, एंड कोल्ड वॉर एंड करने के लिए पहला स्टेप उसी ने उठाया। प्रेस्ट्रोइका और ग्लासनोट जो है, जब गोर्बाचेव अपने ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन में था, तो ये पूरे रिस्ट्रक्चरिंग का इन्होंने प्रोसेस शुरू किया। किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था कि रशिया तो सोशलिस्ट है, तो वहाँ प्राइवेट कंपनीज कैसे? नहीं, रशिया सोशलिस्ट नहीं है। अब ग्लासनोट प्रेस्ट्रोइका के बाद जो रशिया आज है, वो can be called mixed or capitalist actually, but it's not socialist. It can be dictatorial but not socialist, क्योंकि उसकी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया था गोर्बाचेव ने कि प्राइवेट कंपनीज भी आके अब आप शुरू कर सकती हैं, एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, नेचुरल गैस में, पेट्रोलियम में, और मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। और बहुत दिक्कत हुई रशियन इकोनॉमी को, जीडीपी को, उसकी करेंसी को, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम गोर्बाचेव को बहुत कम ही, लेकिन जनसंख्या पॉजिटिव लाइट में आज भी देख पाती है, और सोवियत यूनियन का जो शिप है ये आपका कोलैप्स हो गया इनटू 15 डिफरेंट कंट्रीज, जो आप देख सकते हैं। दिस वाज द कैरिकेचर व्हिच वाज डन। Gorbachev, the last Soviet leader, finally then resigns,
और यूएस recognize कर देता है independence of all the 15 countries, Russia being one of them, then Latvia, Lithuania, Estonia, Romania, Bulgaria, Ukraine, Georgia, ये सारे. बुश जो है Lord's the vision of Soviet Union. Very good. Bush the senior. And the communist flag is removed. And ये सारी चीजें आपकी होती हैं. So this was your very short history of Soviet Union and the history of the structure of what were the financial ramifications of carrying out socialism, which was not planned according to the stage of development which Marx had envisioned before.